Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And don't forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, we are joined in by editor Rural Voice Harveer Singh in our studios. Harveer ji, welcome to the show. Thank you. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है निशित। Domestic stocks stumbled more than 2.5%. Sensex closes below 52,900 mark. Nifty settles below 15,900. Global equity indices incur heavy losses. Gold jumps above 53,500 rupees per 10 grams at the multi-commodity exchange, and Brent crude skyrockets to $125 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 52,900 से नीचे पहुंचा। निफ्टी 15,900 के स्तर से नीचे बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट। सोना उछलकर 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के पार हुआ और कच्चे तेल की कीमत अत्यधिक बढ़ोतरी के साथ $125 प्रति बैरल तक पहुंची। सेंसेक्स और निफ्टी में आज 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी के बीच दोनों सूचकांक सुस्ती में रहे। सेंसेक्स 52,900 के नीचे जबकि निफ्टी 15,900 के स्तर के नीचे आकर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.74% की मंदी से 1,491 अंक लुढ़ककर 52,843 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.35% की गिरावट से 382 अंक टूटकर 15,863 पर आ गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.25% नीचे आ गया जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। The Sensex today plunged more than 2.5%. The key domestic share market stumbled in sync with big falls in the global stocks. The Bombay Stock Exchange Sensex closed below the 52,900 points while the NSE Nifty finished below 15,900 level. The Sensex lost 1,491 points or 2.74% to settle at 52,843. The Nifty also declined 382 points or 2.35% to trade at 15,863. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap and the small-cap outperformed the Sensex. The mid-cap fell 2.25% and the small-cap index declined, trading at 2.3%. In the Sensex pack, 4 companies logged gains while 26 witnessed losses. Bharti Airtel was the top gainer as it rose 3.5%, followed by HCL, which added 1.4%. On the other hand, IndusInd slipped 7.6%, Axis declined 6.7% and Maruti ended 6.6% down. Bajaj Finance fell 6.4% and Bajaj Finserv slipped 6.3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all the 19 indices logged losses. Realty lost the most as it fell 5.3%. The BankX tumbled 4.6% and Finance Index plunged 4.4%. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was negative as shares of 783 companies gained while 2,684 fell. Shares of 127 companies remained unchanged. और इस बीच जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं खजुराहो से। हेलो जी नमस्ते सर। जी नमस्ते जितेंद्र, आपका प्रश्न क्या है? यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी हरवीर जी हमारे साथ में है। यामिनी जी आज नहीं हमारे साथ। को भी नमस्ते। मेरे 2 क्वेश्चन थे सर जी। एक तो इसके बारे में जो गिफ्ट सिटी होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में क्या डिफरेंस होता है?
जी, गिफ्ट सिटी की बात उन्होंने की है। जी 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 जी। गिफ्ट सिटी तो देखिए ये एक फाइनेंशियल हब के रूप में एक जगह को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कोशिश ये है कि दुनिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले बड़ी कंपनियां हैं या बैंक्स हैं, वो वहां पर आए और अपना शॉप सेटल करें, और जिससे कि जो इंडिया एक बड़े फाइनेंशियल हब के रूप में, बेसिकली जो बैंकिंग और फाइनेंस उसके रूप में डेवलप हो, उसको गिफ्ट सिटी दिया है। जब एनपीए का देखिए, जो एनपीए है उसमें बैंक्स का जो ओवरऑल उन्होंने लोन दिया है, और अगर वो एक सर्टेन उसकी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर रिपे नहीं करता जो बोरोवर है, वो एनपीए में आता है। उसके लिए एक प्रोविजनिंग होती है, या प्रोविजनिंग के बाद जब आप देखेंगे तो वो नेट एनपीए उस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जब बैंक्स उसके लिए प्रोविजन कर देता है। And also, as you asked about the gift city, it's based in Gujarat. Yeah, it's Gandhinagar. It's in Gandhinagar, I presume, and also the purpose of establishing this city is for the investors, that they can purchase, international stocks and shares, especially from the American markets and other developed economies. And it has just started in this month only. I believe it's at the start of this month only, and it has yet to take some shape now. But actually, it is. No, basically, if you want to buy stocks from global developed countries and big MNCs, so already there is a route available. But definitely, we need big financial companies to be settled there. So we want to establish like you have a basically Central London. Central London is the hub of basically banking and finance of the world. Yeah. Investment companies, banks, insurance companies, and all. That's true. So that is a dream that Gift City will be developed like that. Exactly. So our next caller is Jalgir Singh from Mumbai. Jalgir ji, स्वागत है. Can you hear us? Anyways. जी, और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 81 पैसे कमजोर हुआ, और ये पहली बार है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे आया है। घरेलू मुद्रा बाजार में $1 $77 के आसपास बंद हुआ। वैश्विक तेल बाजार में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण रुपए में गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल की तरफ जाती हुई दिख रही है, जिसके प्रभाव से घरेलू बाजार में उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। घरेलू बाजार, हरवीर जी, देखा जाता तो मोस्टली हम एफएमसीजी की तरफ ज्यादा जाते हैं, जो हमारे डेली नीड्स की वस्तुएं होती, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका आने वाले समय में? देखिए, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो है ये इम्पैक्ट उस तरीके से आएगा, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट की हम बात करेंगे तो वो एक उस तरीके से कैलकुलेट होगा। सो इट विल कॉस्ट अस मोर। और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का है, उसमें जो भी उसकी लागत आती है वो तो कंज्यूमर के ऊपर ही पास ऑन किया जाता है। जी, और आपको बता दें घरेलू मुद्रा बाजार में $1 $76.97 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.41 पर था। Well, Harveer ji, talking of the currency, it's almost at 77 rupees, almost at the lifetime high. How do you see this coming in the, panning out in the coming days? Actually, the weakening of rupee has two aspects. One is positive, another one is negative. So when we export our commodities and products in the international market, we becomes more competitive, because from the same dollar we earn more rupee here. So our companies become competitive. It is good for IT exports and all these companies. They will make benefit out of it, and other exporters also. But on the other hand, because we import a lot of things, like our energy basically requirement is almost more than 80-85%. We depends on crude oil import, as well as some other commodities like edible oil. We import almost 2/3 of our requirement we meet through imports. Yeah. So in that case, and even some companies imports components. So all these things will go up. It will add the cost. So definitely there is a direct impact on inflation. And this the cost will be transferred, as I was talking earlier, it will be transferred to the consumer. So we will have more inflationary pressure. At the same time, it is like that. Rupee is weakening. Why? Because our imports are becoming costly. So that's why it is directly hitting the rupee. So, and rupee is going down, it is again making imports costly. So it is double impact we are facing on that. जी, Our next caller is Agrasen Yadav from Delhi. Agrasen ji, सवाल पूछें अपना।
जी नमस्कार सर, पूरी मार्केट मंत्रों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सवाल पूछें। सर मैं शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसी मतलब कोई भी कंपनी बताइए या म्यूचुअल फंड में मतलब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इक्विटी लॉन्ग टर्म में क्या सही रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मूलधन अगर मान लीजिए हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें से भी हमारा अगर जो लॉस होगा तो उसमें भी से लॉस जाएगा या खाली हमारे जो इनकम है ब्याज आएगा उसमें से मतलब लॉस जाएगा? थैंक यू। नहीं देखिए, एक तो ये है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और एक ये माना जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है नए इन्वेस्टर को, उसको म्यूचुअल फंड रूट ही अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको एक तो एक मुश्त कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आप SIP रूट लेंगे जिससे कि हर महीने आपका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके हिसाब से आप पैसा देंगे। आपको डीमैट अकाउंट खोल के फिर आप किसी ब्रोकर या जो इस तरह की कंपनी है जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके थ्रू आप उसमें कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड में जो आपका जो पैसा है वो जो इन्वेस्ट होगा वो डिपेंड करता है कि एक तो वहां पे एक्सपर्ट्स हैं तो वो देखते हैं कि उस पैसे को सही मायने में कहाँ लगाना है, आप सीधा स्टॉक्स में लगाना है या डेट में लगाना है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह सारा पैसा लगाते हैं। तो वो एक थोड़ा सुरक्षित रास्ता होता है, हालांकि रिस्क सब जगह है, सुरक्षित मार्केट में कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट है। लॉस एंड गेन, ये अगर आपका मूलधन आप बात कर रहे हैं, आपने बैंक में कहीं पैसा जमा किया उस पर आपको जो ब्याज मिला, तो अब इसमें आपका कम कैसे होगा? ये तो मिनिमम इंटरेस्ट तो आपको अवेलेबल होगा ही होगा। इट्स लाइक दैट। और ये अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस वो तो देखिए इट विल डिपेंड नेचुरली हो तो। और मुंबई से जलगीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो जलगीर। हेलो जलगीर जी, आपका प्रश्न क्या है? हेलो जी। your 3 o'clock program. जी. But it is not available in Mumbai. On what frequency are you? All right. It's available on 100.1 megahertz. That is FM Gold, and also you can tune into our on our website, that is newsonair.gov.in. ये ऐप पर भी जा सकते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप पर. And we also have our app AIR News. You can download it from the Google Play Store and you can listen to it on that. And 100.1, I believe, in Mumbai, it's very readily available, I believe. And also news on AIR.gov.in is a very popular platform, so you can tune into that. So our next caller is Subhash from Faridabad. Subhash ji, welcome to the show. नमस्कार सर. नमस्कार, सवाल पूछिए. सर मैं पूछना चाहता था कि ये जो अभी मार्केट डाउन होता जा रहा है, कब तक ऐसा ट्रेंड चलेगा? ओके जी. देखिए ये तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि बिकॉज मार्केट का जो सबसे बड़ा जो अभी जो डाउनफॉल है उसके पीछे जियोपॉलिटिकल इशू है, और ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का एक टेंशन है, और उसमें जाहिर सी बात है कि ये दोनों देश कहीं न कहीं सप्लायर है बहुत सारी चीजों के, उसका भी एक जो सप्लाई चेन भी अफेक्ट हो रही है, प्लस जो अनसर्टेनिटी है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। उससे आपका ऑयल महंगा हो रहा है, तो उसका दूसरे इम्प्लीकेशंस हैं, दूसरे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो रहे हैं, तो ग्लोबली इट इज अफेक्टिंग दिस। और इसको अभी कोई नियर 1-2 दिन में कुछ ऐसा रिजोल्व होता दिखता हो, ऐसा नहीं लगता, बिकॉज द वॉर 10 दिन से ज्यादा हो गया है, 12 दिन। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये कब तक मार्केट पे इसका असर रहेगा। तानु साहा है कोलकाता से. हेलो. हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन डेट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एक कंट्री, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट द क्राइटेरिया टू बी ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री? That basically when government borrows money from the market to meet its expenditure. So there are two components of expenditure. One is revenue and another is debt, and sometimes non-tax revenue also. These are the three components. So this is the difference between all this debt and expenditure. Expenditure is all together. Even borrowing also is a part of expenditure of the government.
And it's time now for a quick commercial break, but please do stay tuned because we have lots coming up on the other side. सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से मार्केट मंत्रा में। और वैश्विक शेयर बाजार आज लुढ़क गए और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं अमेरिकी डॉलर काफी मजबूत हुआ, जबकि एशियाई शेयर बाजारों में आज अत्यधिक गिरावट आई है। रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों तथा ईरान से बातचीत में देरी होने के चलते कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल के आसपास पहुंचने वाला है। इस बीच जापान के निक्केई 225 में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में 3.9% की सुस्ती आई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2.3% की सुस्ती देखी गई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज 2.2% नीचे आ गया। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.2% की मंदी के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में आज फ्रांस के कैक में 2.1% की गिरावट दर्ज की गई और जर्मनी का डेक्स 2.7% लुढ़क गया। वहीं लंदन का FTSE 100 1.3% नीचे आकर कारोबार कर रहा था। And our next caller is Anil Ahuja from Delhi. Anil ji, welcome to the show. हाँ, नमस्कार टीम। मेरा ये प्रश्न है, जैसे ओवरसीज में FIIs यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वैसे अपन लोग भी वहाँ बाहर की मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई प्रोसीजर है तो कृपया बताएं प्लीज। देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस है, उसमें पूरा प्रोसेस है कि आप किस तरीके से जो विदेशों के जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनी है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं और फंड्स हैं जिनमें ये आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और they also invest as per the RBI guidelines. Yes, and we also have the fund of funds where you can invest. Anil ji. जी, दिल्ली से धर्म है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, आपका प्रश्न क्या है? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे काफी लोग रिटायर होने के बाद FD में ही पैसा जमा करते हैं, कोई आसान तरीका नहीं है जो बैंकों के थ्रू ही हम मार्केट में अपना पैसा लगा पाएं और आसान तरीके से अपने पैसे को अधिक ये जो मिलता है आपको इन्वेस्ट मिलता है FD से वो मिले? देखिए, बैंक्स के पास इन्वेस्टमेंट प्लान तो हैं अदर देन FD जो है, और कुछ बैंक्स के अपनी जो एसोसिएट्स कंपनियां हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं, डीमैट सिस्टम के जो अकाउंट खोल के, और उसमें आपके एडवाइजरीज उनके पास है। वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बैंक से, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट के लिए, एडवाइस के लिए उनकी टीम होती है। दे कैन गाइड यू प्रॉपरली, अगर उन्हीं बैंक्स के कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है तो। And also we have this BOTS plan, which are the best fixed income plans, and also many banks they have their own in-house mutual funds. That's right. कई सारे बॉन्ड्स भी होते हैं जिसमें पैसा लगा सकते हैं। But that is not a same function. That is basically investment arm in that case. Investment advisory. Exactly, and we also have this ETFs, bonds, mutual funds. And all these are basically we can say the product of the market, exchange traded funds and all. But for that you have to go through that demat account, and you have to be part of that. Exactly. But as he was asking if the banks have that in-house kind of a system, so definitely they do have many of the PSBs, the public sector banks. But not as their primary function. That is additional. Absolutely, that's an ancillary thing. Yes. Absolutely, all the time. So our next caller is गुरुनाथ फ्रॉम थाने। गुरुनाथ जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अरविंद सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा क्वेश्चन था, सर ये जो अभी रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है चालू है सर, ये जो क्रूड ऑयल का जो दाम बढ़ते जा रहे, जो $100 के ऊपर
सर हमारे यहाँ जो चुनाव है इसके लिए इसकी वजह से जो बढ़ोतरी ये बढ़ाने का जो दाम गवर्नमेंट ने रोका था और ये क्या कल परसों में ये एकदम से बढ़ जाएंगे और ये जो थैंक यू सर। अब देखिए ऑफिशियली गवर्नमेंट का कहना है कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हाथ में है कि कब वो दाम बढ़ाएंगे, वो उनका अपना कैलकुलेशन है। गवर्नमेंट टैक्सेशन फ्रंट पे जरूर अपना स्टेप लेती है कि उसमें जो टैक्स कंपोनेंट है उसको कैसे एडजस्ट करना है या कम करना है, बट यूजुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपना कॉल लेती है। और हम इससे स्पेकुलेट भी अभी नहीं कर सकते, इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी या कांस्टेंट रहेंगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ इट हैपेंस। जी, गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो गौरव। नमस्ते जी, नमस्ते। आपसे प्रश्न। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, तो मेरा सवाल है कृषि संबंध में। ये नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है वो यूरोप में $3,000 टच कर गई हैं और मैंने ऐसा सुना है कि नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर बहुत आपस में लिंक्ड हैं। फर्टिलाइजर प्राइसेस आर ऑलवेज लिंक्ड टू नेचुरल गैस। इज इट ट्रू और नॉट, एंड हाउ इट विल अफेक्ट आवर fertilizer supply from abroad, because we are actually getting a lot of fertilizers from abroad और हमारे किसान जो है उनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर डीजल, फर्टिलाइजर और तीसरा बीज और चौथा लेबर होती है। तो ये इसका मतलब तो इन्फ्लेशन बहुत तेज चलेगा और क्या मतलब आप इस तरह इसका पूरा समीकरण समझाएं तो एक हमारे जो हम लोगों के लिए तो समझ में आ जाएगा सर कि कैसे रिफ्लेक्ट होने वाला है नेक्स्ट कृषि सीजन आने वाला है जुलाई में। जी थैंक यू। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो नेचुरल गैस है उसका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से सीधा संबंध है। वो फीड स्टॉक के रूप में यूज होता है। हमने पहले कोल बेस्ड थे, फिर नाफ्ता बेस्ड थे और हमारे सारे प्लांट्स जो हमारे डोमेस्टिक प्लांट्स भी हैं वो सब गैस बेस्ड प्लांट्स हैं। तो ये एक तो ये एस्पेक्ट है और नेचुरली गैस प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये इम्पैक्ट फर्टिलाइजर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ेगी। खासतौर से दो तरीके के फर्टिलाइजर हैं, डिकंट्रोल और कंट्रोल। यूरिया कंट्रोल फर्टिलाइजर है, उसका दाम सरकार तय करती है और इंडस्ट्री को जो भी उसका कॉस्ट आती है उसके बाद एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से उनको सरकार जो कंपनसेट करती है, जो बीच का डिफरेंस है सब्सिडी के रूप में। इसके अलावा हम यूरिया इंपोर्ट भी करते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पिछले दिनों यूरिया करीब $650-700 के बीच में आ गया था, बट नाउ इट इज टचिंग $900 ऑलरेडी। फिर जो डिकंट्रोल फर्टिलाइजर है जिसमें डीएपी है, एमओपी है, आपका बाकी जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है या पोटास है वो ये उनका रॉ मटेरियल है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये ज्यादातर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत है इनके ऊपर। और इसमें एक तो बड़ा सप्लायर बेलारूस और रशिया से हम लोग अपने एमओपी का करीब 46% लास्ट ईयर 45.95% हमने इंपोर्ट किया था। अभी वो जो सोर्स है सप्लाई का वो हमारा चौक हो गया है, बिकॉज वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और सैंक्शंस लग गए हैं इन देशों के ऊपर। ये एक बड़ा पहलू। सो वी हैव टू गो फॉर न्यू सोर्सेज। उसमें कनाडा है, उसमें जॉर्डन है, सऊदी है, इवन चाइना है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ट्यूनीशिया वगैरह। तो वहां से हम सोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनका प्राइसेस बहुत बढ़ गया है अभी। मेरे ख्याल से फॉस्फोरिक एसिड जिससे डीएपी हम लोग बनाते हैं तो $1,530 हो गया है। एमओपी के प्राइसेस भी $600 से ऊपर चले गए, $675-675 तक जो है। तो अभी एक तो ये हमें देखना है कि ये फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी के लिए हमारे जो कंपनियां हैं और सरकार और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है उनको मिलकर के बहुत बेहतर रणनीति बनानी होगी, जिससे कि अभी जो खरीफ सीजन आने वाला है उसमें जो रिक्वायरमेंट शुरू होने वाली है जून से, उसके लिए समय से सारे फर्टिलाइजर अवेलेबल हों। तो जाहिर सी बात है कि महंगे हैं, सरकार को सब्सिडी के ऊपर भी कॉल लेना पड़ सकता है। जहां तक आपने कहा कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन का दो पहलू है। जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजर एक इम्पोर्टेंट इनपुट है, प्रोडक्शन को सीधे प्रभावित करता है। बाकी वेदर है, बिकॉज अभी भी जो प्रेडिक्शन आया है कि अगला मानसून भी नॉर्मल रहेगा। सो इन दैट केस दैट क्रॉप विल बी गुड, लुक्स लाइक दैट कि अभी अगर जो प्रेडिक्शन आया है मानसून का वो ठीक रहता है तो उसी तरीके का मानसून रहता है। तो जी, के रॉय है रायपुर से। हेलो हेलो जी, रॉय साहब आपका प्रश्न। जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि अब हर दिन
जो मार्केट है वो एक बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पर पहुंच रहा है, 1500 पॉइंट, 1600 पॉइंट। तो क्या शेयर मार्केट का या ऐसा कोई रूल है कि एक निचले स्तर पर पहुंच जाने के बाद ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है कुछ समय के लिए, ताकि मार्केट स्थिर रहे या अपने आप को संभाल ले? ऐसा कुछ नियम है क्या? थैंक यू। हाँ, वो तो देखिए सर्किट लगता है, इवन इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी सर्किट लगता है, भले उसके बाद फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये नियम तो है। And that is only limited for a specified period of time. It can't be forever. So our next caller is Keshav from Delhi. Keshav जी, स्वागत है। हेलो सर। हेलो, नमस्कार सर। मैं दिल्ली से केशव बोल रहा हूँ सर। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे सर 5 लाख की FD है जी। तो सर मैं शेयर मार्केट में इसको कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें कमा सकता हूँ सर, वो बताएंगे? देखिए, आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, आप उसको एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए, बिकॉज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का ये एक रिक्वायरमेंट है। और उस डीमैट अकाउंट के जरिए फिर आप किसी ब्रोकर हाउस के जरिए या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और फर्म्स हैं उनके जरिए फिर आप डिस्कस करके उसमें आप SIP शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और आप डायरेक्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इट विल डिपेंड कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। बट आपके पास नॉलेज जरूर होना चाहिए, बिना सोच समझ के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Exactly, that's the bottom line. We need to have that kind of knowledge, Keshav, before you plunge in the market directly, or else you can alternately take the mutual fund route, which should be much better. It would provide you the needed cushion just in case of any crash any further. And moving on to oil now, the global crude oil prices today hit 14-year high. Oil and other commodity prices witnessed strong gains as the risk of a US and European ban on Russian crude imports threatens stretched supply chains. Delays in Iranian talks also pushed oil prices and heaped further inflationary pressure on the economies worldwide. In the intraday trade, Brent crude was trading around $125.50 per barrel, while the WTI crude prices were at $123 per barrel level, and the oil prices are the highest since July 2008, when it hit a record of $147.27 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना आज 1060 रुपए महंगा हुआ है और ये 53,615 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मार्च के वायदा कारोबार में 1,440 रुपए की बढ़त के साथ 70,560 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना कई वर्षों के बाद उछाल के साथ $1,988.20 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी आज दिन के कारोबार में बढ़त से $25.95 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। Very quickly, gold, as always, has been the safe haven. So yes, it's always a safe haven, and then uncertainties like this this moment we are seeing globally, that's why demand is going up. All right. And before we close, we have the headlines once again. Domestic stocks tumble more than 2.5%. Sensex closes below 52,900 mark. The Nifty settles below 15,900. Global equity indices incur heavy losses. Gold jumps above 53,500 rupees per 10 grams as the multi-commodity exchange, and Brent crude rockets to $125 per barrel. And before we close, a big thank you to Harveer Singh ji for having come to our studios and enlighten our listeners. और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर से। घरेलू शेयर बाजार में 2.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 52,900 से नीचे पहुंचा। निफ्टी 15,900 के स्तर से नीचे बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। सोना उछलकर 53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के पार हुआ और कच्चे तेल की कीमत अत्यधिक बढ़ोतरी के साथ $125 प्रति बैरल तक पहुंची। And that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with my co-anchor Nikhil Kumar and Harveer Singh. This is the entire team of Market Mantra saying goodbye till we meet again the next time. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.